Assalamu alaikum dear students. So today I'm going to deliver a lecture about gametogenesis. There's an chaos and confusion, but in this time we have to somehow manage. So last time I discussed about the topic about the spermatogenesis, जिसका हमने वीडियो अपलोड किया था, जिसको हमने देखा था. इस टाइम पे हम एक और इसी का एक और पार्ट देखेंगे, gametogenesis का दूसरा पार्ट देखेंगे, that's called as oogenesis. In spermatogenesis, we discussed about how the formation of the spermatozoa, the sperm occurs. And now in this oogenesis, we will see how the formation of the female gamete that's called as ovum occurs. Okay? And now, अगर बात करेंगे spermatogenesis की, oogenesis की, दोनों में से जो दूसरी process जो हमें आज discuss करनी है, oogenesis की बात करेंगे. What is the process of oogenesis? How can we define oogenesis? Oogenesis simply means a process, a gametogenetic process. A process in which there occurs the formation of female gamete. ठीक है? So यहाँ पर क्या होगा? Formation of, it's a process formation of female haploid gamete, and this female haploid gamete is also called as the ovum. So process of formation of present in ovaries. Yeah. Ovary. So process of formation of ovum simply is called as oogenesis. It occurs under the influence of hormone, and this hormone is called as FSH. So FSH की बताओ. एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी. ये जो oogenesis की प्रोसेस ये कब स्टार्ट होती है? Spermatogenesis तो मैं आपको बोला था ये होती है मेल्स में at the time of puberty, when they reach at the time of puberty, but in case of females ये कब स्टार्ट होती है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ये स्टार्ट होती है तब जब एक बच्ची अपने माँ के पेट में होती है. So quite extraordinary. तब अभी बच्ची बनी नहीं है, अभी उसमें पूरी डेवलपमेंट हुई नहीं है, लेकिन उसमें oogenesis हो रही है. फिनोमेना स्टार्ट होता है उस टाइम पे. So it starts exactly right from the embryonic stage. अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही है, अभी वो माँ के पेट में ही है और उसमें oogenesis स्टार्ट हो रही है. So in case of females, it starts at the 25th week of embryogenesis. So embryological stage होगा that's in the 25th week. So उस टाइम पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो रही है in case of females. ठीक है? So that means वहां पर ओवरीज बन चुके हैं और ओवरीज में ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है. सो अब इस प्रोसेस में होगा क्या? जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में बात कर रहा हूं, फिर से दोनों को कंपैरिजन एक हिसाब से मैं कर रहा हूं, लेकिन सिमिलैरिटीज बहुत सारी आ रही है. अगर बात करेंगे oogenesis की, इसमें भी फेजेस इन्वॉल्व होंगे. तो इसमें कौन कौन सा फेज इन्वॉल्व होता है? इसमें 3 फेज इन्वॉल्व होते हैं. पहला वाला फेज जो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी था, इसमें भी होगा वही फेज. द फेज इज कॉल्ड एज multiplicative phase or multiplication phase. Second phase is called as exactly growth phase, and third phase that we involve that occurs in case of oogenesis, that's called as maturation phase. तो यहाँ पर भी 3 फेज इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर भी 3 फेज इन्वॉल्व हो गए थे. So ये 3 फेज कौन कौन से हैं? So पहला वाला फेज जिसमें इन्वॉल्व होगा in case of oogenesis, that's called as, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 phases. It involves 3 phases. The first one, that is multiplication phase. Multiplication phase. Now, in this phase, what happens? वही जो वहां पर भी हुआ था, स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ था, फिर से यहां पर भी ऐसी प्रोसेस हो जाएगी. That is the phenomena of mitosis. यहां पर एक mitotic stage start हो जाएगा. किन में? So in this case, in multiplication phase, there occurs the process of mitosis in the germinal epithelium cells, in the germinal cells which occur inside the ovaries. वहां पर ये प्रोसेस स्टार्ट होगी. So ovaries में प्रोसेस स्टार्ट होगी, उसमें माइटोसिस होगी. माइटोसिस होने के बाद क्या होगा? सेल्स बनेगी. और यहाँ पे जो सेल्स बनती है ना, हमें पता है यहाँ पे डिप्लॉइड सेल्स ही बनेगी. तो यहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स नहीं बन सकती, यहाँ पे डिप्लॉइड सेल बनेगी. So यहाँ पे जो डिप्लॉइड सेल बनेगी फ्रॉम द germinal epithelium, उस सेल को हम नाम देते हैं oogonium. So here the formation of oogonium occurs. Okay? Now in this case, there are a number of oogonia cells formed. So a large number of oogonia are formed. ठीक है ना? And these oogonia, which are formed from the germinal epithelium, they shift. अगर हम बात करेंगे ओवरीज की, ठीक है ना? ओवरीज पे यहाँ पर अगर हम let us assume यहाँ पर करेंगे ये germinal epithelium है, ठीक है?
सो जब एपिथेलियम से oogonia बन चुका है, यहाँ पर oogonia बन चुके हैं, they shift towards the inner side of the ovary, और ये शिफ्ट करेंगे, ये मूव करेंगे towards the inner side of ovary, and this it's called as cortex में मूव करेंगे. So they move towards the cortex. अगर आपको याद होगा और उसमें अपने पार्ट्स आते हैं, ठीक है. सो इसमें जो पार्ट्स आता है, पार्ट आर दैट्स कॉल्ड एज germinal epithelium, second part that's called as tunica albuginea, third part that's called as cortex, and fourth innermost that's called as medulla. So इसमें 4 पार्ट्स आते हैं. तो मैं कह रहा हूं ये जो oogonia है ना, शिफ्ट हो जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द ओवरी, ठीक है. ये कॉर्टेक्स की तरफ मूव करेगा. अब यहां पर बहुत सारे oogonia बन चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे oogonia बन चुके हैं. अब उन्हीं oogonia में से एक oogonia डेवलप हो जाएगा. oogonia बहुत सारे हैं, ठीक है. अब उसमें से एक डेवलप हो जाएगा, एंड नाउ दैट oogonia इज कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte. अब यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है मैंने, ऑलरेडी एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दी, इसकी फ्लो चार्ट बनाया है. बहुत सारे सेल्स है, ठीक है, germinal epithelium की सेल्स है. उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिवाइड किया और उन्होंने oogonia बनाया. नाउ लेट्स ऑन आउट ऑफ द oogonium, आउट ऑफ द मेनी oogonias, ठीक है, एक oogonium डिफरेंशिएट हो जाएगा. इसमें ग्रोथ हो जाएगी, इट एक्युमुलेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है. जब इसमें ग्रोथ हो जाएगी तो ये डेवलप हो जाएगा. आफ्टर द ग्रोथ इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte. तो यहां पर जो हमारे पास जो सेल है जिसके ऊपर हमें अब काम करना है, जिसके ऊपर अब फर्दर क्रॉस हो जाएगी, द सेल इज कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte. सो प्राइमरी oocyte कब बनती है, शाबाश, जब इसमें ग्रोथ होगा. किसमें ग्रोथ होगा, oogonia में. एक सेल को सिलेक्ट किया गया, ठीक है, उसमें ग्रोथ हो रही है, दैट्स कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte. इतना ही नहीं है, जब प्राइमरी oocyte वहां पे डिफरेंशिएट हो चुकी है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द सेल्स आ रही है, उसको कवर कर रही है, जो उन सेल्स को बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स. सो प्राइमरी oocyte along with the other follicular cells, अगर oogonia है, मैंने कहा ये प्राइमरी oocyte है, अब इसके इर्द गिर्द बाकी सेल्स जो फॉलिकुलर सेल्स सराउंड करेंगी, ठीक है. प्राइमरी oocyte along with the follicular cells, ये मैच्योर हो जाता है, डेवलप हो जाता है. अब इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल. आई होप कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पढ़ा होगा. और वहां पर जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टेज से डिफर करते हैं, हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स द ग्राफियन फॉलिकल. सो यहां पर हमारे पास एक second stage is called as growth phase. Growth phase. As we know in the growth phase, there occurs a growth. So in this oogonium, इसमें थोड़ी सी growth हो जाएगी. It accumulates a large amount of cytoplasm, ठीक, and now it gets converted to primary oocyte. So we have a cell that's called as oogonium. It undergoes a growth. It forms a second cell, a second type of cell, and that's called as primary oocyte. So first phase, ये वाला phase था, इसको हमने कहा multiplication phase. दूसरा phase, ये वाला phase है, it's called as growth phase. So अगर हम growth phase की बात करेंगे, in the growth phase, there occurs a growth in case of oogonium, and that oogonium later on gets converted into primary oocyte. There occurs the third phase. अब तीसरा वाला phase क्या होगा, इस phenomena में तीसरा phase क्या होगा, that's called as maturation phase. Maturation phase, there occurs the process of meiosis. So meiosis यहाँ पे हो जाएगी. और आप लोगों को पता है कि meiosis में 2 टाइप्स आते हैं, meiosis first and meiosis second. ठीक है बेटा. सो याद रखिएगा, अब प्राइमरी oocyte है, अब इसमें meiosis हो जाएगी. अभी भी ये जो बच्ची है ना, ये अभी माँ के पेट में ही है, ठीक है, एंड द प्रोसेस स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द ईयर, ठीक है. सो वहां पर इसमें meiosis हो रही है. हार्मोन याद रखिएगा, इट ऑकर्स, ये जो होल एम्ब्रियोनिकल फिनोमेना है ना, इट ऑकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH. सो हार्मोन याद रखिएगा, ठीक है. अब यहाँ पर प्राइमरी oocyte है, इसमें meiosis फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है. एंड वी नो जब भी meiosis होता है ना, सो इट meiosis फर्स्ट इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन. सो रिडक्शनल डिवीजन में ये प्रोसेस हो जाएगी कि यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स बनेगी, तो बन गई यहाँ पे 2 हैप्लॉइड सेल्स बनती है. प्राइमरी oocyte अंडरगोस meiosis फर्स्ट एंड इट फॉर्म्स 2 हैप्लॉइड सेल्स. कंडीशन इज, अगर यहाँ पर कंडीशन है 44 प्लस XX, ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी 22 प्लस X and 22 plus X, and these 2 cells are haploid cells. This one, इसमें से एक सेल उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, and this cell is called as secondary oocyte. The second cell, which is formed, which also happens, is called as first polar body. But meiosis first होने के टाइम पे, during the time of meiosis first, it actually gets suspended, it actually gets arrested. ये रुक जाती है, process doesn't continues.
it actually gets suspended. अगर meiosis first है, the process gets suspended at the stage that's called as diakinesis. Diakinesis. You must be familiar about the meiosis first. अगर आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा, असल में है क्या ये पूरा? ये सेल साइकिल ही है, it's nothing else. ठीक है, सेल डिवाइड कर रही है, इट अंडरगोस माइटोसिस, सेल साइकिल, इट अंडरगोस मियोसिस, सेल साइकिल, इट अंडरगोस ग्रोथ, सेल साइकिल. ये सेल साइकिल ही है. तो सेल अपने आप को डिवाइड कर रही है. ठीक है, अगर आपको याद होगा मियोसिस फर्स्ट, जब हम मियोसिस फर्स्ट पढ़ते हैं हम बोलते हैं उसमें सब फेज से, सब स्टेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. उसके बाद उस प्रोफेज में अपने सब स्टेज है. कौन कौन सा स्टेज है? लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्सीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. इसमें 5 सब स्टेज है. ठीक है, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्सीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस. ठीक है, अब लेकिन मैं कह रहा हूं मियोसिस फर्स्ट में डायकाइनेसिस के स्टेज पे प्रोसेस स्टॉप हो जाती है. रीजंस, ये प्रोसेस क्यों स्टॉप हो जाते हैं? क्योंकि इसको एफएसएच नहीं मिलता है. रीजंस, ये डायकाइनेसिस पे क्यों स्टॉप हो जाते हैं? क्योंकि एट दिस टाइम हियर मियोसिस फर्स्ट के डायकाइनेसिस स्टेज पे इसी टाइम पे पार्चुरेशन हो जाती है. एक बच्ची का जन्म हो जाता है, मां अपने बच्ची को जन्म देती है. ठीक है, तो यहां पर डायकाइनेसिस स्टेज पे पार्चुरेशन ऑकर्स. अब जब पार्चुरेशन हो गई है, इस वाले सेल को या ये जो यहां पे जो सेल साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसको हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है, एफएसएच. वो कब बनेगा? वो तब बनेगा जब एक बच्ची खुद मैच्योर हो जाएगी, जब वो रीच करेगी प्यूबर्टी पे. एंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, when it reach the time of puberty, ठीक है ना, इसमें रिलीज होता है एफएसएच. तो एफएसएच जब रिलीज होगा तो प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी. सो ये जो सेकेंडरी oocyte का बनना है, ये कब बनता है? एक्चुअली इट्स फॉर्मड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. तो ये बन जाता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. उस टाइम ये बनेगा जब खुद एक बच्ची मैच्योर हो जाएगी, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा. ठीक है ना, तो यहाँ पे जो फीमेल्स है ना, when they become sexually mature, they form the secondary oocyte. अदरवाइज ये प्रोसेस स्टॉप हो चुकी है. स्टार्ट हो चुके जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज, लेकिन स्टॉप हो चुके ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज के लास्ट वाले स्टेज पे, दैट्स कॉल्ड एज पार्चुरेशन. पार्चुरेशन के टाइम पे स्टॉप हो गई एंड लेटर ऑन जब ये प्यूबर्टी पे रीच हो जाएगी, प्रोसेस विल कंटिन्यू. सेकेंडरी oocyte विल बी फॉर्मड. सेकेंडरी oocyte के साथ साथ एक और चीज बनता है, इसका फर्स्ट पोलर बॉडी. सवाल है फर्स्ट पोलर बॉडी क्यों बन गया, इसका रूल क्या है? इट लेटर ऑन डिजेनरेट्स. फिर बना क्यों? एक्चुअली यहां पर क्या होता है, हैप्लॉइड कंडीशन को लाना है. अगर मुझे यहां पर एक सेकेंडरी oocyte एक सेल बनानी, दैट्स हैप्लॉइड कंडीशन, मुझे दूसरी सेल भी बनानी जो हैप्लॉइड कंडीशन में होनी चाहिए. ठीक है, तो दैट्स व्हाई फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्मड इन ऑर्डर टू रिटेन द हैप्लॉइड कंडीशन. उसके बाद नाउ हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी को छोड़ देंगे, हमारे पास ये जो सेल हमारे पास दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी oocyte, इट फर्दर अंडरगोस मियोसिस सेकंड. अब इसमें मियोसिस सेकंड होगा. तो मैच्योरेशन फेज में दोनों मियोसिस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड. चलिए ठीक है, सो मियोसिस सेकंड हो रहा है यहाँ पे. सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड हो जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. बट फिर से स्टॉप होगी प्रोसेस फिर से स्टॉप हो जाएगी. क्यों? क्योंकि मियोसिस सेकंड में ये अभी पूरी कंप्लीट नहीं हो रही है. सेकेंडरी oocyte जो अभी ग्राफिन फॉलिकल के अंदर था, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा. एंड नाउ दिस सेकेंडरी oocyte विल मूव टुवर्ड्स द fallopian tube. From the ovary toward the fallopian tube, it will reach at the isthmus, ampulla isthmus border. अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पे प्रोसेस आगे बढ़ेगी. सेकेंडरी oocyte पहुंच चुका है fallopian tube में. ठीक है, एंड एट द fallopian tube अब इसको फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए. अगर ये फर्टिलाइज हुआ तो सेल साइकिल कंप्लीट होगा, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो सेल साइकिल कंप्लीट नहीं होगा. रीजंस आती है. When it ends in the meiosis second, अब मियोसिस सेकंड में क्या होगा, यहां पर मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, ये स्टॉप हो जाती है. प्रोसेस अगेन स्टॉप्स. मैं कह रहा हूं मैच्योरेशन फेज. नाउ द सेकेंडरी oocyte अंडरगोस मियोसिस सेकंड, एंड द मियोसिस सेकंड द प्रोसेस अगेन स्टॉप्स द मेटाफेज सेकंड पे. क्यों? बिकॉज हियर ऑकर्स द मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एक्युमुलेशन ऑफ मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो एनाफेज को होने नहीं देंगे. अब एनाफेज कब होगा? जब ये सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज होगा. जब फर्टिलाइज कब होगा? जब इसके साथ स्पर्म फ्यूज हो जाएगा. ठीक है, सो स्पर्म फ्यूज होने के टाइम पे स्पर्म एक कॉम्प्लेक्स रिलीज करता है, दैट्स कॉल्ड एज एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स. सो फ्रॉम द स्पर्म्स देयर ऑकर्स एपीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स. एपीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स. जब एपीसी वहां पर आएगा, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आएगा. ठीक है, सो मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करेगा. और जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा
तब हमारे पास ये सेल बनेगी, दैट सेल इज कॉल्ड एज ओवम और फीमेल गेमीट। सो यूजुअली अगर देखा जाए यहां पर सेकेंडरी oocyte हमारे पास है। सेकेंडरी oocyte में सेल साइकिल तब कंप्लीट होगा जब इसमें स्पर्म फर्टिलाइज होगा। एम्प्यूला इस तरह बॉर्डर पे जब स्पर्म फर्टिलाइज होगा उस टाइम स्पर्म रिलीज करेगा एपीसी एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर और तब यहां पे ओवम बनेगा। अदरवाइज फर्टिलाइजेशन के बगैर ओवम नहीं बनता है। सो अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ फीमेल्स एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो बॉडी से रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte, दैट्स नॉट ओवम। ठीक है, वो ओम नहीं होता, वो सेकेंडरी oocyte होता है। सो उस टाइम पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी जब इसके साथ स्पर्म अटैच हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। सो होल प्रोसेस, इस होल प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। लेट मी कंक्लूड दिस प्रोसेस। होता क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम है, these germinal epithelium cells actually undergoes tuition, they undergoes mitosis and they form a large number of cells, and these cells are called as oogonia. Out of the many oogonia, one cell, oogonium cell, it undergoes further process। ठीक है, अब इस further process में क्या होगा, it undergoes actually growth phase, and now this cell is called as primary oocyte. Primary oocyte later on undergoes meiosis first, but meiosis first gets arrested, suspended, diakinesis. क्यों? Because at the time parturition occurs। ठीक, जब parturition हो जाएगी, ठीक है, so parturition के टाइम पे ये process stop हो जाएगी, and this process will continue at the time of puberty, because at the time FSH is released, and which actually helps in the conclusion of this process। Now FSH release हो गया, this primary oocyte जो रुक चुका था the diakinesis, diakinesis of prophase first, which actually रुक गया था diakinesis of prophase first, stop हो गया था यहाँ पे diakinesis of prophase first, the process continues and now it forms secondary oocyte and the first sporal body। Later on what happens, यहाँ पे दूसरा meiotic stage हो जाएगा, ठीक है। So 22 plus X it undergoes meiosis, and we know जो meiosis सेकेंड होता है इसमें जो सेल का नंबर, सेल का जो कंटेंट है ना, सेल का जो कंटेंट है, न्यूक्लियर कंटेंट वो सेम रहता है। सेल नंबर इंक्रीज होगा लेकिन न्यूक्लियर कंटेंट सेम रहेगा। In meiosis second, if we have a condition 22 plus X, we have two cells, they have the same condition 22 plus X plus 22 plus X। ये प्रोसेस तब कंप्लीट होगी जब यहां पर स्पर्म फ्यूज हो जाएगा विद द सेकेंडरी oocyte। अब क्वेश्चन आया था, बहुत बार क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन आ चुका था, हाउ मेनी पोलर बॉडीज आर फॉर्म। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो दो पोलर बॉडीज बन चुकी है। इन केस ऑफ ह्यूमंस देयर आर टू पोलर बॉडीज फॉर्म्ड, बट इन केस ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है, अदर एनिमल्स की अगर बात करेंगे वहां पर जो टोटल पोलर बॉडीज है ना वो 3 बन चुकी है। क्यों? इन केस ऑफ ह्यूमंस फर्स्ट पोलर बॉडी डजंट अंडरगोस एनी सॉर्ट ऑफ ट्यूशन, ठीक है, इसमें meiosis सेकंड नहीं होती है। लेकिन इसमें अदर एनिमल्स की अगर बात मैं कर रहा हूं उसमें meiosis सेकंड होगी, तो यहाँ पे दो और सेल्स हो जाएंगी 22 plus X and these are the 3 polar bodies। And in case of humans just 2 polar bodies, but in case of other animals there are 3 polar bodies। So here this concludes the topic that's about the oogenesis।